سنت نمبر 19 کیا ہے جناب والا کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے دوران جناب والا آپ کا جو پاؤں ہوتا ہے یا بلکہ دونوں پاؤں جو ہوتے ہیں اس کی انگلیوں کا زمین پر لگنا، سب کا 5 اور 5 کتنی جناب والا 10، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین پر لگنا سجدے کے دوران ہے۔ سنت نمبر 20 نماز کے دوران کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہمارے سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ اس چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچے اور لوگ جو ہے ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ہم نے آخری سبق پڑھا تھا کس کے متعلق جی؟ آخری سبق کون سا پڑھا تھا؟ تو سنتوں پر ہم نے ٹوٹل کتنے سبق پڑھ لیے؟ 4 سبق ہم نے کتنے پڑھے جی؟ 4۔ ٹوٹل سنتیں کتنی پڑھ لی؟ 18۔ ایک بات بتاؤ یار کیا ہے؟ چلیں جی نمبر 19۔ پچھلے سبق میں ہم نے آخری سنت پڑھی تھی نمبر 18 کہہ لیں جی۔ 18 نمبر سنت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مرد کو یہ حکم ہے کہ سجدے کو ذرا پھیل کر کرے۔ کیا جی؟ پھیل کر ذرا، ہاں جی، سمٹ کر یا اکٹھا ہو کے نہیں کرنا، کیونکہ اکٹھے ہو کر یا سمٹ کر سجدہ کرنے کا عورت کو حکم ہے۔ کس کو جی؟ عورت کو حکم ہے۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ اپنے بازوؤں کو اپنی کروٹ سے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے۔ بازو کا مطلب یہ بازو ہوتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو یہ والی جگہ جو ہے بندے کے یہاں پہ آ جاتی، سائڈ پہ آتی ہے نا، سائڈ پہ، تو سائڈ پہ ایسے کر کے اس کو ساتھ نہیں چپکانا بلکہ تھوڑا سا کھلا رکھیں اس کو۔ اور اگر جماعت ہو رہی ہے، آپ کو بتایا تھا، پھر یہ نہیں ہے کہ ایسے جناب والا کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیں جناب، ہاں جی، سیدھے ہاتھ رکھیں جا کے زمین پر اور جناب والا سجدہ کریں۔ اور عورت جو ہے اس کے لیے یہی تھا کہ وہ جتنا زمین کے ساتھ چپک کر سجدہ کرے گی اتنا ہی اس کے لیے ثواب کیا ہے جی؟ زیادہ۔ اور سنت بھی عورت کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنا جناب والا پورا جسم جو ہے اس کو پوری جناب والا چپک کر زمین کے ساتھ سجدہ کرے، تو اس طرح اس کی سنت جو ہے نماز میں وہ پوری ہو جائے گی۔ نمبر 19۔ نمبر 19 جناب والا، اچھا عورت جو ہے نا وہ تو سجدہ جو ہے زمین پر اسی طرح کرے گی جس طرح میں نے بتا دیا ہے۔ اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں لیکن کیونکہ سبق زیادہ ہو رہے ہیں تو شارٹ کٹ کر رہے ہیں۔ بھی عورت جناب والا رکوع کس طرح کرے گی اور اسی طرح جناب والا جب بیٹھے گی وہ کس طرح بیٹھے گی، تو یہ چیزیں چھوڑیں کیونکہ آپ سارے مرد ہیں، تو اگر کسی کو مسئلہ ہوا تو وہ بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ عورت اگر یہ کام کرے گی تو کس طرح کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، ہم آج 2 اور پڑھا دیں گے تاکہ ٹوٹل کتنی ہو جائیں جناب والا؟ 20۔ سنت نمبر 19 کیا ہے جناب والا کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے دوران جناب والا آپ کا جو پاؤں ہوتا ہے یا بلکہ دونوں پاؤں جو ہوتے ہیں اس کی انگلیوں کا زمین پر لگنا، سب کا 5 اور 5 کتنی جناب والا 10، یعنی اس اہتمام کے ساتھ سجدہ کرنا کہ آپ کے دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا، یعنی 10 ہوتی ہے نا ٹوٹل، 10 انگلیوں کا زمین پر لگنا، یا 10 انگلیوں کا پیٹ کا زمین پر لگنا۔ پیٹ میں نے اس دن بتایا تھا، پیٹ کیا ہوتا ہے انگلی کا؟ ہاں درمیان والا یعنی پیٹ ہی ہوتا ہے یہ والا۔ تو زمین پر لگنا کیا ہے جی؟
सुन्नत है। याद रखिएगा 10 उंगलियों का आपके पाँव का, यानी दोनों पाँव जो हैं इनकी 10 उंगलियों का जमीन पर लगना क्या है जी? सुन्नत। और हर पाँव की 3-3 उंगलियों का जमीन पर लगना सजदे के दौरान है, ये है वाजिब। क्या है जी? आपको पता है, शायद आपने भी देखा हो कि कई लोग जब सजदा करने जाते हैं ना तो पीछे से पाँव उठा लेते हैं, शायद कभी देखा हो। या बाज़ का बच्चों की आदत होती है, बच्चों की ज़्यादा आदत होती है। तो इसलिए आपको पता है कि जब वाजिब छूट जाए तो फिर क्या होता है? क्या होता है जी? अब जिसको पता ही नहीं है, जो बंदा पाँव को उठाकर नमाज पढ़ रहा है और उसको पता ही नहीं है कि जो पाँव की उंगली होती है या उंगलियां होती हैं जनाबे वाला, 5 लगाना सुन्नत है, 3 लगाना वाजिब है। एक पाँव की बात कर रहा हूँ, एक पाँव की, यानी हर पाँव की, हर 2 में से एक पाँव की 3 उंगलियां लगाना वाजिब है, 5 लगाना क्या है जी? सुन्नत है। और उंगलियों का रुख भी जनाबे वाला किबला की तरफ होना चाहिए। वो कैसे होगा आपको पता है? कई लोग होते हैं जब बैठते हैं पाँव की उंगलियां इस तरह कर लेते हैं। इस तरह नहीं करनी, बल्कि इस तरह करनी। समझ आ रही है? तो समझ आई भाई कि नहीं? यानी पाँव इस तरह मरोड़ के नहीं बैठना। यहाँ सजदे में जाते हुए पाँव की जो उंगलियां हैं उनका रुख इस तरह नहीं कर लेना, बल्कि इस तरह नीचे जमीन पर टका के जनाबे वाला, तो उसका पेट खुद ब खुद ही जनाबे वाला किबला की तरफ हो जाएगा। तो ये करना भी क्या है जी? तो ये बस मसला आपको समझ आ गया कि 3 उंगलियों का लगना क्या है? जरूरी है नमाज में। सजदे के अंदर, सजदे में 3 उंगलियों का पेट जमीन पर लगना क्या है जी? और दोनों पाँव का यानी 6 उंगलियां हो जाएंगी, यानी दोनों पाँव की 6 उंगलियों का जमीन पर लगना क्या है जी? और जो पैरों को उठा लेता है जानबूझ के तो उसका वाजिब छूट जाएगा ना। अगर वाजिब छूट दिया तो सजदा साफ आएगा, अगर नहीं करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। कितना बरीकी वाला मसला है। अब जिसको पता ही नहीं है कि जनाबे वाला सजदे में पाँव की उंगलियों का, दोनों पाँव की 6 उंगलियों का और दोनों पाँव की 10 उंगलियों का जमीन पर लगना सुन्नत है, 6 का लगना क्या है जी? वाजिब है। वाजिब। जिसको पता ही नहीं है खिजर साहब क्या करेगा? हाँ जी। बहुत पढ़ के सुना देना। सजदे के दौरान दोनों पाँव की 200 उंगलियों का ज़मीन पर लगाना सुन्नत है और हर पाँव की 3-3 उंगलियों का पीठ ज़मीन पर लगाना वाजिब है।
समझ आई बात जी? जिस तरह मैं पहले भी समझा चुका हूँ वही बात है, लेकिन मैं आपको बताया था कि कोशिश करता हूँ कि इबारत मुश्किल होती है, उसमें से जो आपके लिए आसानी हो वो जुमला बीच में से निकाल लूँ, वो मैंने निकाला अपनी सोच के मुताबिक। सजदा के दौरान 2 सजदे होते हैं ना, एक सजदा पहला ले लें। सजदा के दौरान दोनों पाँव की 10 क्या 10 जो अगर ज्यादा कहेंगे तो 10 हो जाएगा, हाँ जी, या 10 उंगलियों का, इस तरह भी लिख सकते हैं। 10 उंगलियों का जमीन पर पेट लगना सुन्नत है, और हर पाँव की 3-3 उंगलियों का, या नून गुना भी आएगा, उंगलियों का पेट जमीन पर लगाना क्या है जी? और 10 उंगलियों का किबला रू होना भी सुन्नत नंबर 20 आ गई। सुन्नत नंबर 20 वो है जनाबे वाला, जब हम नमाज के दौरान करते हैं कि नहीं करते? तो भाई कहाँ करते हैं जनाबे वाला? सुभान शहजाद खड़ा होके बता रहा जी। तशहुद में, अब तशहुद में कहाँ पे जाके? हाँ, ये पढ़े नहीं दोस्त साहब? शहादत ये इशारा करना ला पर उंगली उठा लें और इल्ला पर छोड़ दें और बाकी उंगलियों भी सीधी रखें। पता चला? अपने मियाँ साहब की तरह जरा एक्टिव होकर पढ़ा करता लफ्ज़। अच्छा जी, इसमें जब हम तशहुद पढ़ते हैं नमाज में, यानी तहियात, केड़ा बंदा खड़ा होकर सुनाएगा? मैंने जरा सुना भाई, तो चो सुना नमाज का, पता चले तेरा ऊंची बात में। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला आलि इबादिल्लाह वअला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी, अशहदु अन ला इलाहा व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जब आपने ला पे आना, अशहदु अन ला, क्या आपने शहादत वाली या कलमे वाली उंगली को उठाना। कौन सी मशहूर है शहादत कलमे वाली उंगली? हाँ जी, ए अंगूठा, ए छोटी पैना, वड्डी पैना, फिर छोटी या फिर छोटी। हाँ जी, जब हम ला पे उंगली को उठाएंगे तो बाकी 3 उंगलियों का और अंगूठे का हल्का सा बना लेंगे। इस तरह हल्का बन गया, सर्कल गया, और इस उंगली को इस तरह करके ला कलमे पे, किस पे? ला कलमे पे खड़ा करेंगे और इल्ला पे जाके और बाकी उंगलियों को भी सीधा कर लेंगे, यानी जो इस तरह की हुई थी, इकट्ठी की हुई थी, और ये छोटी और ये 2 साथ वाली और अंगूठा, इनको भी हम फिर सीधा करके फिर बैठ जाएंगे। और फिर याद रखिएगा कि जब हम तशहुद में बैठते हैं या एक सजदा करने के बाद दूसरे में बैठते हैं, तो ये नहीं है कि आप पूरी उंगलियां खुली कर लें, इस तरह खुली करके अपना गोडा घुट के फाड़ लो, गोडा नस ना जावे किते, नहीं,
इत्मीनान के साथ अपनी उंगलियों को अपनी हालत पे छोड़ें। ये सुन्नत तरीका है, आराम से बस ना ज्यादा कुशादा हूं ना ही जनाब कुटियां हों पूरियां, नहीं, अपनी हालत पे छोड़ दें। ये क्या है? सुन्नत है, खोलनी नहीं है। अब ये वाला जो मसला मैंने समझाई सुन्नत, आपको शहादत पर उंगली का इशारा करना, आप किसी को पता भी नहीं होगा पहले। ये अगर किसी को पता तो बताएं मुझे। और भाई ये तो पता होगा भी ऐसे करते हैं, ये तो पता नहीं था भी कहाँ पे उठाना और क्या है ये नमाज में, सुन्नत है वाजिब है क्या है, पता है ये? फिर यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो फिर आपको मदरसा नूरुल कुरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको अल्लाह के फजल से ऐसे ऐसे मसले पढ़ा दिए हैं कि शायद फसीह साहब आप पूरी जिंदगी में ना सीख सकते हो। हाँ, अगर दरस निज़ामी की तरफ कोई बच्चा आ जाए तो शायद सीख सकता है, लेकिन शॉर्टकट जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं कोई नहीं करता इस तरह। हाँ जी, तो मदरसे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये मदरसा नूरुल कुरान फतेहगढ़ लाहौर है और ये इसी मदरसे का खासा है। करें विजिट पूरे पाकिस्तान में जाकर। हाँ जी, पढ़ाते हैं ये चीज़ें, पढ़ाते हैं, निसाब पढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरह हम पढ़ाते हैं कोई है तो मेरे सामने आ जाए। सूफी साहब ऑन कैमरा बात कर दूँ। हाँ जी, बिल्कुल हिफज वाले बच्चों को इस तरह पढ़ाना और बुनियादी मसाइल जितने भी हैं तो नौली साहब अल्लाह के फजल से सारे के सारे याद करवाएंगे नहीं? अभी तो आगे और चलेंगे। हाँ जी, अभी तो आगे और चलेंगे। अभी तो क्या कहते हैं, पार्टी शुरू हुई है अभी तो इसका इम्तिहान बाकी है, सारा कुछ बाकी है, और आज का भी आपका इंशाल्लाह ताला टेस्ट भी बाकी है। तो आपने समझ लिए, दो मसले समझे आज आपने। पहला जनाबे वाला ये मसला भी बड़ा अहम है कि नहीं? हाँ जी, आपने शायद कभी सुना हो लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से कभी नहीं समझा आपने। और यकीन माने अक्सर नमाजियों को भी पता नहीं है, यकीन माने नहीं पता नमाजियों को कि सजदे में जब जाना है तो कितनी उंगलियों का पेड़ जनाबे वाला जमीन पर लगना जरूरी है, सुन्नत है, वाजिब है, क्या है, नहीं पता। हाँ जी, और इसी तरह ये वाला बस लकीर के फकीर बने होते हैं हम जनाबे वाला। जब ये देखा साथ वाले ने ऐसे किया तो हमने भी ऐसे कर लिया, देखा उसने उंगली नीचे कर ली तो हमने भी नीचे कर ली। ऐसे ही होता है सर, कोई बंदा भी इस तरफ आने को तैयार नहीं है। आपको हमने समझा दिया, आपका ये हक बनता है और जो सुनने वाले हैं उनका भी हक बनता है कि कम अज कम अपने 5 बंदों को तो बताएं ना। आप बैठे हैं सारे बच्चे, अपने घर में बताएं, ये मसला सिखाएं उनको, और सुनते बताएं, नमाज के वाजिबात बताएं, नमाज के फराज बताएं, और उनका हुक्म भी बताएं कि फर्ज छूट जाए नमाज नहीं होती, वाजिब छूट जाए सजदा साहब वाजिब आता है, लाजम आता है, नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। और सुन्नत का हुक्म जब नरम है, छूट भी जाए तो नमाज तो बंदे की हो जाती है। ठीक है जी, कल मिलेंगे जी नए सबक में, तब तक के लिए